ہارون صاحب سے درخواست ہے کہ مہمان خصوصی پروفیسر خالد محمود صاحب کی خدمت میں بھی گلدستہ پیش فرمائیں۔ غیاث رضا صاحب سینئر اسسٹنٹ ہیں دہلی اردو اکیڈمی کے، آپ استقبال فرمائیں پروفیسر شہپر رسول صاحب مہمان خصوصی۔ محترم عزیر حسن صاحب سے درخواست ہے کہ خیر مقدم کریں پروفیسر چندر دیو سنگھ یادو صاحب کا۔ بہت شکریہ۔ صاحب صدر، مہمانان گرامی اور معزز حاضرین، اردو اکیڈمی دہلی کی جانب سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ یہ سلسلہ نئے پرانے چراغ، میرے خیال میں یہ 37واں سال ہے، اور کسی بھی ادبی اجتماع کے اس تواتر اور تسلسل کے ساتھ 37ویں سال کو مکمل کرنا ایک بڑا ادبی واقعہ ہوتا ہے۔ ہم دہلی اردو اکیڈمی کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 1996 میں مرحوم پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب وائس چیئرمین تھے اردو اکیڈمی دہلی کے، اور اس وقت سیکریٹری تھے پروفیسر محمد صادق صاحب۔ ان کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا، سوائے 1-2 برسوں کے جو کورونا کی نظر ہو گیا۔ کے غرور چین لیتے ہیں کہاں تیری اداؤں کے، چین لیتے ہیں کہاں تیری اداؤں کے غرور، موسلا دھار برسنے پہ بھی سب خشک رہا، موسلا دھار برسنے پہ بھی سب خشک رہا، یوں بھی صحراؤں نے توڑے ہیں گھٹاؤں کے موسلا دھار برسنے پہ بھی سب خشک رہا، یوں بھی صحراؤں نے توڑے ہیں گھٹاؤں کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی۔ جناب انصاری محمد راقم صاحب۔ آزادی کے بعد ترقی پسند تحریک سے انحراف کر جن نئے لکھنے والوں نے ادبی دنیا میں اپنی الگ شناخت قائم کی، ان میں سید وحید اختر نقوی کا نام لیا ہے۔ وحید اختر بنیادی طور پر فلسفہ کے طالب علم اور استاد تھے، لیکن ادبی دنیا میں ان کی شناخت شاعر اور نقاش سے ہوتی ہے۔ 1935 عیسوی میں مومن پورہ اورنگ آباد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن جائز تھا، یہ وہی جائز ہے جس کی خاک سے فرماوت خالد ملک محمد جائز سے اٹھی۔ لڑکپن مجالس اجزا، سلام، نوحہ اور صفحہ اکرام کے مرثیے پڑھتے ہوئے گزرا۔ ادب نوازی نے انہیں مجالس کی حد بندیوں سے نکال کر ادبی حلقوں سے رسناس کرایا۔ ان کی ذہنی و ادبی سفر کا آغاز ہوا تو اس وقت ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ بھی اس تحریک سے وابستہ ہو گئے، لیکن اس کے منصور کے پابند نہیں۔ ترقی پسند کے فارمولہ بند منشور سے انحراف کر وحید اختر نے جدیدیت کے دامن کو تھاما، لیکن انہوں نے اس رجحان کی پیچیدگی اور رجحان کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک بامانی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی اور تخلیق و تنقید کی سطح پر ایک آزادانہ روش کو ترجیح دی۔ باقاعدہ طور پر ان کی شاعری کا آغاز 1948 سے ہوا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔
शायरी पर मुश्तमिल 4 मजमूए उनकी वफात से कबल शाये हो चुके थे। वहीद अख्तर के चारों शेरी मजमूए हस्बे ज़ेल हैं। पत्थरों का मुगन्नी 1966, शब का रस्मिया 1973, जंजीर का नगमा 1981, करबला का करबला 1990। इब्तदाई 3 मजमूओं में नज़्में और गज़लें शामिल हैं, जबकि आखिरी मजमूआ करबला का करबला उनके मरासी पर मुश्तमिल है। वहीद अख्तर नज़रियाती एतबार से तरक्की पसंद अनासर के कायल थे, लेकिन उसके हिसार के पाबंद नहीं। हालांकि उनकी जहनी व फिक्री तरबियत में ग्रामीण हैदराबाद का असर ज़्यादा रहा है, जहाँ तरक्की पसंद शोरा व रुतबा की बज़मारानी शबाब पर थी, जिसकी छाप उनकी इब्तदाई नज़्मों और गज़लों में नजर आती है, जिसमें इमायत, इशारियत और अलायन की जगह सराहत व वज़ाहत ज़्यादा है। इस ताल्लुक से खलीलुर्रहमान आज़मी ने लिखा है कि जिन लोगों ने वहीद अख्तर की नज़्में और गज़लें इधर उधर से पढ़ी होंगी या खुद उनकी ज़बान से सुनने का मौका मिला होगा, मुमकिन है उनका पहला तासुर ये हो कि ये शायर अंदाज़ व उसलूब के एतबार से उस शायरी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है जिसे हम तरक्की पसंद शायरी कहते हैं। इसलिए नई नस्ल के बहुत से शोरा के बरखिलाफ इनके यहाँ इख्तिसार व पेचीदगी के बजाय फैलाव और सराहत मिलती है। वहीद अख्तर को बुनियादी तौर पर नज़्म का शायर ख्याल किया जाता है, लेकिन उनकी पहली गज़ल के मुताले से इस बात का इल्म हो जाता है कि वह गज़ल के रमूज़ व औक़ाफ़ से बखूबी वाक़िफ़ थे। वहीद अख्तर की गज़ल गोई का आगाज़ उनके पहले मजमूए में शामिल गज़लों से होता है। इस मजमूए में शामिल गज़लों की तादाद नज़्मों के बिलमुक़ाबिल कम है। जहाँ उन्होंने अपनी गज़लों में माज़ी और माज़ी की बाज़ियात को पर्देहाल में बयान किया है, वहीं तरक्की पसंदी का लहजा भी उभरा और तुम और तुम्हें के सेगे से रावी का किरदार सामने आता है। इब्तदाई गज़लों में यह तासुर कायम रहता है कि यह किरदार किसी से जुदा हो रहा है या अपनों को तलाश रहा है। नमूने के तौर पर गज़ल के शार मुलाज़ा हूँ। तुम गए साथ उजालों का भी झूठा ठहरा, रोज़ो शब अपना मुकद्दर ही अंधेरा ठहरा, रोज़ नज़रों से गुजरते हैं हज़ारों चेहरे, सामने दिल के मगर एक ही चेहरा ठहरा। यादों की वाबस्तगी बहुत ही कर्बनाक होती है और हम इसकी पेचीदगियों में हमेशा उलझे रहते हैं। यादों से जो इंसानियत का रिश्ता है वह जल्दी मुनक़ते नहीं हो सकता। नूर राशिद और अख्तर ईमान भी माजी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सके। वहीद अख्तर की ज़िंदगी बहुत तारीख रही है, एक के बाद एक मसाइल से दो चार होते रहे हैं, और जब उन्होंने कलम को हाथ में लिया तो वही सभी नगूश उभर कर शायरी के पैराए। आज ही हम देखें, हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सब बड़े खुशपोश नजर आ रहे हैं, बड़े खाए पिए हुए से लोग नजर आ रहे हैं, लगता हो कि कोई गम ही नहीं है। लेकिन जरा नजर डालिए मुल्क के सियासी, समाजी, सकाफती सूरत हाल पे, ऐसा महसूस होता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ जीना बहुत दुश्वार हो गया है। क्या ना वो शेर उसका मिसरा के जीने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा, तो हम सब उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। जीने वाले तेरे कलेजा होगा। तो ये आशोक जो हमने याद का है, ये जाहिर है कि इस आशोक के शिकार थे मीर और गालिब के यहाँ भी आशोक। उस पुराशोक दौर का मंजर था वो उनकी जात और हयात, जो अवाम की जिंदगी थी, मुल्क की जो सूरत हाल थी, उस तनाजुर में हर लम्हा ऐसा लगता था कि मौत का लम्हा सामने है। हर लम्हा जहर का प्याला पीने के मुताबिक था। ये जो सूरत हाल थी, ये वो दर्द हम है जो मीर के यहाँ है। जात का दर्द नहीं कहते ना कि जात और कायनात को, उन्होंने अपने गम को जात के गम को कायनात के साथ मरहम कर दिया। गम जहां को गम जाना को गम दौरा बना दिया, ये गम जहां बना दिया। जाहिर है कि ये मीर के यहाँ उसी आशोक का इजहार है जिसको हम दर्द या गम से ताबीर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि क़ुनूतियत के हवाले से अगर मीर की शायरी पर गौर करें तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। रजाइयत पर इससे बेहतर कोई शेर नहीं हो सकता है। ये मेरा ख्याल है, मुमकिन नाफिज़ इत्तफाक न करें, मुमकिन है। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। मौत को भी मांदगी का वक्फा महज करार देना, ये मीर का रजाई अंदाज है। ये ऑप्टिमिज्म है, मीर की ऑप्टिमिज्म। इससे बेहतर ऑप्टिमिज्म, यानी मौत को भी खातिर में नहीं लाते कि तुम क्या हो, वो मांदगी का वक्फा है, उसके बाद फिर जिंदगी हमारी, मौत के आगे भी सफर न डालो। ये है वो रजाइयत का लहजा जो मीर क्या है। तो मीर के इतने शेड्स हैं कि किसी शेड, एक शेड को हम अगर समझ लें कि यही मीर है, हर शायर के बारे में, इकबाल के बारे में, गालिब के बारे में, फैज़ के बारे में नहीं, अगर आप देखें तो मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। एक बड़ा शायर ये रुखी शायरी नहीं करता, एक बड़ा फनकार उसका फन ये रुखा नहीं होता, बल्कि वो मल्टी डायमेंशनल
افکار و تصورات ہوتے ہیں، اس کے تخیلات ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا جو دائرہ ہے، جو اس کے یہاں جو کائنات ہے اس کی فکر کی، وہ ظاہر ہے کہ وسیع تر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جن کو پیش نظر کے مارکس کے حوالے سے، مارکسزم کے حوالے سے بات کہی، ہمارے دوست نے بات کی۔ ظاہر ہے کہ قمر رئیس صاحب مارکسسٹ رہے ہوں نہ رہے ہوں، لیکن خالد اشرف صاحب جو ہیں وہ اپنے رویے میں کافی حد تک مارکسزم کو فالو کرتے ہیں۔ تو بہرحال قمر رئیس صاحب دیکھیے، ترقی پسندی کو لوگ عام طور سے مارکسزم سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ترقی پسندی کا مطلب مارکسزم ہے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ ترقی پسندی صرف مارکسزم تک محدود نہیں ہے، ترقی پسندی ایک رویہ ہے زندگی کا، ایک اپروچ ہے کائنات کی طرف، دنیا کی طرف، انسانوں کی طرف، انسانیت کی طرف۔ ابھی ریختہ کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں ایک پینل ڈسکشن میں نے شریک تھا، اس میں مسئلہ ترقی پسندی کا آیا تھا۔ اس میں نے ایک حالی ترقی پسندی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، میری نظر میں ترقی پسندی وہی ہے۔ میں جب ریسرچ کر رہا تھا پروفیسر صاحب کے انڈر میں، تو ظاہر ہے کہ اکثر اس پہ گفتگو ہوتی تھی، تو یہ شعر میرے ذہن میں موقع کر کے آتا تھا۔ میں نے ترقی پسندی کو جس طرح سے دیکھا ہے، وہ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ترقی پسندی کتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ترقی پسندی کیا ہے۔ اور ایک دور کی طرف ترقی پسندی کو 35-36 سے نہیں شروع کرتے۔ میں نہیں مانتا کہ ترقی پسندی 1935-36 میں شروع ہو گئی۔ ترقی پسندی روز اول سے ہے۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے تب سے اس کا ایک نظریہ، دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے، اس نظریے میں جو پوزیٹیوٹی ہے، جو مثبت قدریں ہیں، وہ ترقی پسندی ہے۔ حالی کا شعر سن لیجیے، کیا ہے وہ، اب دیکھیے ٹھہرتی جا کر نظر کرو۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ یہ ہے ترقی پسندی۔ ترقی پسندی کو اگر ایک شعر میں آپ ڈیفائن کریں تو یہی ہے ترقی پسندی، یعنی بہتر سے بہتر معاشرے کی تلاش۔ ہجرت کرتے ہی اکثر کٹ جاتے تھے، میں ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا تھا، میں ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا تھا، سیلابوں میں جس کے گھر کٹ جاتے تھے۔ میں ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا تھا، سیلابوں میں جس کے گھر کٹ جاتے تھے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس بستی میں اب بس گونگے رہتے ہیں، اس بستی میں اب بس گونگے رہتے ہیں، جن کے لب کھلتے تھے سر کٹ جاتے تھے۔ اس بستی میں اب بس گونگے رہتے ہیں، جن کے لب کھلتے تھے سر کٹ جاتے تھے۔ ایک جنگل کی وحشت ناک ہواؤں سے، ایک جنگل کی وحشت ناک ہواؤں سے روزانہ 2-4 شجر کٹ جاتے تھے۔ ایک جنگل کی وحشت ناک ہواؤں سے روزانہ 2-4 شجر کٹ جاتے تھے۔ اس کے نام میں جانے کیسا جادو تھا، اس کے نام میں جانے کیسا جادو تھا، اس کے نام سے تیز بھنور کٹ جاتے تھے۔ قرار نہیں، یہ اور کیا ہے اگر تیرا انتظام قرار پا کے بھی مجھ کو کہیں قرار نہیں، یہ اور کیا ہے اگر تیرا انتظام نہیں، گلا نہیں کہ مجھ کو کہیں قرار نہیں، گلا نہیں یہ کہ مجھ کو کہیں قرار نہیں، وہ زخم ہوں جسے مرہم کا انتظار، جسے وہ زخم ہوں جسے مرہم کا انتظار نہیں، نظر جھکائی ہے سر تو نہیں جھکایا ہے،
नजर झुकाई है सर तो नहीं झुकाया है, नजर झुकाई है सर तो नहीं झुकाया है, गुरूर टूटा है मेरा मगर वकार। क्या कहने पर जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए दोस्तों, जनाब इकबाल अशर साहब के बाद में मैं मुल्तमिस हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ जनाब अश्वनी कुमार और दुनिया को गौर से देखे जा रही है। ये क्या अफसाना लिखा था आपने, मेरी लाश मेरी लाश। उसमें से मुझे यार बिल्कुल बेकार रख के अफसाना था आपका। दिल में कर दिया आपने। नहीं कोई ना सेंस ना कुछ इसका। अब मैं पुरानी दिल्ली की नुमाइंदा अफसाना निगार शायरा मोहतरमा चश्मा फारूकी से इल्तिमास करूंगा वो अपना अफसाना गूंगी बाजी आकर चश्मा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अफसाने को अनुमान भाई ने बताया भी गूंगी बाजी पेश खिदमत है। जिस घर में यानी बिल्डिंग में हम रहते थे उसके चारों कोनों पर 4 खानदान थे। एक हिस्से में हम लोग थे, एक में हमारे चचा रहते थे, दूसरे दोनों कोनों में दोनों फूफियाँ रहती थी। एक फूफी बेवा थी और फूफा साहब के इंतकाल के बाद यहाँ आकर रह गई थी। दूसरी फूफी के फूफा साहब से बनी नहीं और वो भी वापस आ गई। वालिद साहब ने वक्त रहते सबका हिस्सा अलग अलग कर दिया। इस तरह कोई रंजिश नहीं थी, सब अपने अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहे थे। बड़ी फूफी बेवा भी थी और औलाद की दौलत से भी छोटा सा लोथड़ा बाहर निकल गया है, उससे खून रिस कर जमीन में जज्ब हो रहा है। बक उस लोथड़े पर लपक रहा है। जैसे ही उस गोश्त के लोथड़े तक बक का मुंह पहुंचा, लोथड़े से एक रोशन शुआ बाहर निकली है और आसमान की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है। मेरी मुर्दा लाश की आंखें उसे जाते हुए बहुत अफसुर्दगी के साथ देख रही हैं। हसरत भरी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। मेरी मुर्दा लाश की आंखों को ऐसा लग रहा है जैसे उस गोश्त के छोटे से लोथड़े से कोई तस्वीर निकली है, जिसके हाथ हैरतज़दा अंदाज में उसके मुंह पर रखे हुए हैं। मगर उसे गौर से देखा जाए तो वो तस्वीर गेहूं की एक बाली नजर आएगी। मेरी मखदूश लाश के टुकड़े किस्तों में तकसीम हो गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन कुत्ते मेरी लाश के अलग अलग हिस्सों को भंभोड़ रहे हैं, चबा और नोच रहे हैं। वो तस्वीर या गेहूं की बाली मेरी मुर्दा लाश की निगाहों से ओझल हो चुकी है। निगाहें कब्रिस्तान की तरफ मरकूज हो गई हैं और कब्रों को दुर्दीदा अंदाज में देख रही हैं। एक पुरानी कब्र में हरकत हुई है, वो पूरी तरह हिलने लगी है। कब्र का ऊपरी हिस्सा शक हुआ है, अब उसे एक हयूला बाहर निकला है। उसकी वज़ाक़ता से उसकी खब्तुल हवासी आया है। वह हयूला मेरी मखदूश लाश के करीब आ रहा है। उसके होंठ हरकत कर रहे हैं, उसके मुंह से आवाज आ रही है, दम ददन दर राह इश्क़ यार ने। कब्र से निकलने वाला हयूला अपनी मौज में मेरी मखदूश लाश के ऊपरी हिस्से को नोचते हुए कुत्तों के पास पहुंचकर खड़ा हो गया है। वो मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े और पार्चे पार्चे देखकर खुश हो रहा है, मगर इसके वजूद के अंदर से सदियों का दुख झांक रहा है। मेरी मुर्दा लाश की आंखें उस हयूले को देख रही हैं। यकीनन वो हयूला सरमत का है। सरमत की कटी हुई गर्दन मां सर उनके बाएं हाथ में है। वो मेरी लाश की दुर्गत देखकर फिक्रमंद हो गए हैं। कुत्तों को हाँक रहे हैं, कुत्ते इधर उधर भाग रहे हैं। कोई अपनी खुराक छोड़कर भाग रहा है, कोई अपनी खुराक को छोड़ने पर आमादा नहीं है। सरमत कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर मेरी लाश के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी जबान से बार बार कह रहे हैं, पाराशो दर राहू सत पा रहा, दर राहू सत पा रहा। मेरी मखदूश लाश के टुकड़े फुस्तो बेरब्बिल काबा की सदा लगा रहे हैं। हरफे फा मेरी जीस्त का उन्वाने जली है। उसकी तिलिस्माती कशिश से मेरे वजूद का पोर पोर हयात आफरी हो जाता है। फुस्तो बेरब्बिल काबा की सदाए कामरानी मेरे कानों में गूंजती है, तो मेरे आबला ज़दा बेजान और लड़खड़ाते कदम खारे मुगीला के भी पार
नैनवा के मैदान से भी आगे के सफर के लिए बाबा रिकाब हो जाते हैं, लेकिन सोचता हूँ कि वहाँ कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। हजारों कुत्तों से अपनी बेगोरो कफन लाश नुचवाने के बाद फुस्तो की फा तक मेरी रिसाई मुमकिन नहीं हो सकी है। सरमत मेरी मखदूश लाश के बगैर यकीन उस पर बढ़ता जा रहा है कि वो मेरी लाश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन बाजारू गोश्तखोर, मुर्दाखोर और सड़ी गली हड्डियों पर पलने वाले कुत्तों से उसका रवैया मुख्तलिफ होगा। मैं इन सोचों में गुम था कि उसने एक तवील छलांग लगा दी। मेरी लाश चूंकि रक्सकना है इसलिए बख का निशाना चूक गया है। मेरी लाश की गर्दन और हाथ उसके जबड़े की जद में नहीं आ सके, वो मेरे कदमों में गिरा और गुस्से में मेरी लाश की दाईं टांग के टखने के ऊपर के हिस्से को नोच लिया। मेरी लाश मुंह के बल धड़ाम से जमी बोझ हो गई है। रागों, आलापों, अंतरों और मजामीर की आवाज रुक गई है। मेरी लाश सख्त तकलीफ में है। जैक लंदन का कुत्ता बक उसे भंभोड़ रहा है। टखने के ऊपर बक के जरिए नोचा गया हिस्सा बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है जैसे उस पर किसी ने एसिड या बैटरी का पानी डाल दिया हो। वहाँ जहर फैल रहा है। टखने के ऊपर के हिस्से का गोश्त पिघल पिघल कर गिर रहा है। ना जाने क्यों मेरी लाश शदीद तरीन तकलीफ के बावजूद इस जख्म को देख कर मुतमईन है, जैसे इसी जख्म का उसे इंतजार हो। बक की दिलेरी देख कर भौंकने वाले दिगर कुत्ते भी